हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारा रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके और उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके। So let's begin our lecture without any delay, and I think we have learned 19 rules and our last rule was kind and favorite. But in our today lecture, we will only revise our last 9 rules because we already have done a good revision of our starting 10 rules. And our first one is fond of. Whenever we try to showcase some likable habit, there we use of this rule. And our next rule is afraid of. Whenever we try to showcase some fairness of something or someone, there we use of this rule. And our next rule is seek of. Whenever somebody feel unwell or irritating or boring, there we use of this rule. And our next one is dare to. Whenever we try to showcase that somebody has got to do something or somebody has dare to do something, so there we use of this rule. And our next rule is should and must. Whenever we try to give advice or suggestion to someone or somebody, there we use of this rule. And our next rule is how to. Whenever somebody asks that do you know how to do this thing, then you reply that yes, I know how to do this thing. Then he asks how do you know, then you reply that yes, because I know this thing, because I have learnt it. And our next one is bound to. Whenever we try to showcase some foundation, boundary or limitation, there we use of this rule. And our next rule is insist on. Whenever we try to do some polite request or whenever we try to put some pressure on someone or somebody, there we use of this rule. And our last rule was that we have learned kind and favorite. Whenever we try to showcase some variety of likes, dislike, or a particular person or particular thing, there we use of this rule. Now let's see some example of from each rule. And our first example is, are you fond of watching a cricket? कि क्या तुम क्रिकेट देखने के शौकीन हो या फिर तुम्हें क्रिकेट देखने का शौक है? If you agree, then you will reply that yes, I am fond of watching cricket. कि हाँ, मुझे क्रिकेट देखने का शौक है. But if you deny, then you will reply no, I am not fond of watching cricket. कि नहीं, मैं क्रिकेट देखने का शौकीन नहीं हूँ. Then you will ask, why are you not fond of watching cricket? कि तुम क्रिकेट मैच देखने के शौकीन क्यों नहीं हो या फिर तुम क्रिकेट देखने के शौकीन क्यों नहीं हो? Then you will reply, I don't have as much time that I will watch cricket. कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्रिकेट मैच देखूंगा या फिर मैं क्रिकेट मैच देखूं. Then you will ask that why do you not have as much time? Then you will reply, I don't have time because I have to do study. मेरे पास इतना समय इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर मैं पढ़ाई करता हूँ. Then you will ask next question to you that are you afraid of watching cricket match? कि क्या तुम क्रिकेट मैच देखने से डरते हो? If you agree, then you will reply no, I am not afraid of watching cricket match. कि नहीं, मैं क्रिकेट मैच देखने से नहीं डरता हूँ. बट इफ यू अग्री, देन यू विल रिप्लाई दैट यस, आई एम अफ्रेड ऑफ वाचिंग क्रिकेट मैच. कि हाँ, मैं क्रिकेट मैच देखने से डरता हूँ. देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ वाचिंग क्रिकेट मैच? कि तुम क्रिकेट मैच देखने से क्यों डरते हो? देन यू विल रिप्लाई, आई एम अफ्रेड ऑफ वाचिंग क्रिकेट मैच बिकॉज आई हैव फियर ऑफ बॉल. क्योंकि मैं क्रिकेट की बॉल से डरता हूँ, इसलिए मुझे क्रिकेट मैच देखने से डर लगता है. देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट डू यू डेयर टू वॉच अ क्रिकेट मैच? कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम क्रिकेट मैच देख सको या फिर क्या फिर तुम में इतनी हिम्मत है कि क्या तुम क्रिकेट मैच देखो? देन यू विल रिप्लाई दैट यस, आई हैव डेयर टू डू दिस थिंग. कि हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं क्रिकेट मैच देख सकूं. बट इफ यू डिनाई, देन यू विल रिप्लाई नो, आई डोंट हैव डेयर टू सी अ क्रिकेट मैच. कि नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्रिकेट मैच देख सकूं. देन यू विल आस्क व्हाई डू यू नॉट हैव डेयर टू सी अ क्रिकेट मैच? कि तुम में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम क्रिकेट मैच देख सको? देन यू विल रिप्लाई, आई डोंट हैव डेयर टू सी ए क्रिकेट मैच बिकॉज आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दिस. क्योंकि मेरे पास इस चीज़ की हैबिट नहीं है, फिर मुझे इस चीज़ की अभी आदत नहीं है, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्रिकेट मैच देख सकूं. देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट शुड यू वॉच अ क्रिकेट मैच और शुड वी वॉच अ क्रिकेट मैच? कि क्या हमें क्रिकेट मैच देखना चाहिए या फिर तुम्हें क्रिकेट मैच देखना चाहिए? इफ यू एग्री, देन यू रिप्लाई दैट yes, we supposed to watch a cricket match or we should watch a cricket match. कि हाँ, हमें क्रिकेट मैच देखना चाहिए या फिर हमें क्रिकेट मैच देखने के बारे में सोचना चाहिए. बट इफ यू डिनाई, देन यू विल रिप्लाई नो, वी शुड नॉट वॉच क्रिकेट मैच. कि नहीं, हमें क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहिए. देन यू विल आस्क व्हाई वी शुड नॉट वॉच क्रिकेट मैच?
कि हमें क्रिकेट मैच क्यों नहीं देखना चाहिए? देन यू विल रिप्लाई, वी शुड नॉट वॉच क्रिकेट मैच बिकॉज वी डोंट हैव एज मच टाइम टू वेस्ट, कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उससे बर्बाद करें, इसलिए हमें क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहिए। देन वी विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट डू यू नो हाउ टू कुक फूड और डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, कि क्या तुम्हें पता है खाना कैसे बनाते हैं या फिर क्या तुम्हें पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं? देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई नो हाउ टू कुक फूड एंड आई ऑल्सो नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, कि हाँ मुझे ये पता है कि खाना कैसे बनाते हैं और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्रिकेट मैच कैसे खेलते हैं। देन यू विल आस्क हाउ डू यू नो ऑफ ऑल दोस थिंग, कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है? देन यू विल रिप्लाई आई नो अबाउट ऑल द थिंग्स बिकॉज आई हैव लर्नड इट, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं। देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट आर यू बाउंड टू वॉच क्रिकेट मैच, कि क्या तुम क्रिकेट मैच देखने पे लिमिटेशन या फिर बाध्य हो? इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई एम बाउंड टू वॉच अ क्रिकेट मैच, कि हाँ मैं क्रिकेट मैच देखने का बाध्य है या फिर मेरे ऊपर लिमिटेशन है। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई एम नॉट वांट टू वॉच क्रिकेट मैच, कि नहीं ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मेरे ऊपर कोई प्रेशर है कि मैं इस चीज को देखूं। देन यू विल आस्क आई डोंट इंसिस्ट और व्हाई आर यू नॉट वांट टू वॉच क्रिकेट मैच, कि तुम क्रिकेट मैच देखने के बाद क्यों नहीं हो? देन यू रिप्लाई आई एम नॉट वांट टू वॉच क्रिकेट मैच बिकॉज आई डोंट हैव लिमिटेशन, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं है या फिर मेरे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं क्रिकेट मैच देखूं या फिर जिसकी वजह से मैं क्रिकेट मैच देखूं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डू यू इंसिस्ट ऑन योर पेरेंट्स टू वॉच क्रिकेट मैच, कि क्या तुम अपने माता पिता को ऐसे इंसिस्ट करते हो कि तुम्हारे साथ मिलकर क्रिकेट मैच देखें? इफ यू एग्री देन यू रिप्लाई दैट यस आई इंसिस्ट माय पेरेंट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच विद मी, कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करता हूँ या फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्रिकेट मैच मेरे साथ में देखें। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन माय पेरेंट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच विद मी। बट अगर आप मना करते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट या फिर रिक्वेस्ट नहीं करता कि वो क्रिकेट मैच मेरे साथ देखें। देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू व्हाई डू यू नॉट इंसिस्ट ऑन योर पेरेंट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच विद यू, कि तुम अपने माता पिता को इंसिस्ट क्यों नहीं करते हो कि वो क्रिकेट मैच तुम्हारे साथ में देखे? देन यू विल रिप्लाई नो आई डोंट इंसिस्ट और रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच विद यू बिकॉज दे आल्सो हैव देयर वर्क टू डू, कि मैं अपने माता पिता को इंसिस्ट या रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करता कि उनके पास उनके काम करने के लिए क्रिकेट मैच देखने से उनका टाइम बर्बाद होगा। देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, की क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद है? इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज, की नहीं मुझे फिल्में देखना नहीं पसंद है। बट इफ यू अग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई लाइक टू वॉच मूवीज, की हाँ मुझे फिल्में देखना पसंद है। देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू वॉच, कि तुम्हें किस तरह की फिल्में देखना पसंद है? देन यू रिप्लाई दैट आई लाइक टू वॉच एक्शन मूवीज और आई लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज, कि मुझे हॉरर मूवीज देखना पसंद है या फिर मुझे एक्शन मूवीज देखना पसंद है। देन वी विल आस्क दैट विच इज योर फेवरेट एक्शन और हॉरर मूवी, कि तुम्हारी मनपसंद एक्शन या हॉरर मूवी कौन सी है? देन यू विल रिप्लाई दैट माय फेवरेट एक्शन मूवी इज वॉर एंड माय फेवरेट हॉरर मूवी इज 1920, और इट कैन बी any movie which do you want to mention in your communication or during your conversation. And our today rule is how long. Whenever somebody asks a question to that, what a particular days or what a particular time from that you are doing this thing continuously, there will be use of this rule. And now let's see its question structure, which is that key how long have you been doing this thing, or it can be anything plus any action, कि तुम ये चीज कितने समय से कर रहे हो? इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई यस दैट आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग and it can be your any action. You can use for when you don't want to mention your particular month, and it can be your month, it can be your time, and it can be your year. But if you deny then you will reply no I have not been
doing this thing for this particular time, or it can be any year, or it can be any month. And we also can use since at the same time when we want to mention the exact time or exact days or exact duration of the answer. There we use of this. As an example, somebody is asking from you that how long have you been preparing for this exam, कि तुम इस एग्जाम के लिए कितने समय से तैयारी कर रहे हो. If you agree then you will reply that I have been preparing for this exam for couple of years, कि मैं पिछले 2 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. But if you deny then you will reply no, I have not been preparing for this exam for couple of years, कि नहीं मैं पिछले 2 साल से इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं 2 साल से इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ. Then you will ask the next question to you that how long have you been learning spoken English, कि तुम कितने समय से spoken English सीख रहे हो. If you agree then you reply that I have been learning spoken English since last 6 months or since last 1 month, कि मैं पिछले 1 महीने से या फिर पिछले 6 महीने से spoken English सीख रहा हूँ. But if you deny then you reply no, I have not been learning spoken English since last month, कि मैं पिछले 1 महीने से spoken English नहीं सीख रहा हूँ. And we will ask the next question to you that how long have you been playing cricket, कि तुम्हें कितने समय से क्रिकेट खेल रहे हो. Then you will reply that I have been playing cricket since last 3 days, कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार क्रिकेट खेल रहा हूँ. But if you deny then you will reply no, I have not been playing cricket since last 3 days, कि मैं पिछले 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. Then you will ask the next question to you that why are you not playing cricket since last 3 days, कि तुम पिछले 3 दिन से लगातार क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो. Then you will reply I have not been playing cricket since last 3 days because I had some work or I had some urgent work, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए मैं पिछले 3 दिन से लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहा था. I think you like this session and I hope you will do revision of our whole the rules and concept. So let's finish the lecture here and I meet you in the next session.